everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS. आज है बेटा 13, 14, 15, 16th of October the इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ही आज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइजेस मिलने शुरू हो चुके हैं और ये न्यूज़ है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स को लेके। Now, Royal Swedish Academy of Science has awarded the Sveriges Riksbank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel 2025। किसको मिला है? Joel Mokyr, Philippi Eguin and Peter Howitt, 3 लोगों को मिला है for having explained innovation driven economic growth। ये नई कंसेप्ट है आपकी, innovation driven economic growth। The award comes with prize of money 11 million Swedish kronor and half of the prize money has been awarded to Mokyr and the remaining half will be shared by both Eguin and Howitt, right? Now on the face of it, this was an odd pairing of share the award because तीनों में बराबर नहीं बट रहा है। Mokyr, an economic historian, has received the Nobel for his work that used historical sources। इनका क्या काम रहा है? Historical sources to uncover the cause of sustained growth in the world, while Eguin and Howitt have recognized for their mathematical model, which instead of looking into the past, they have analyzed how individual decisions and conflicting interests at the level of firm can lead to steady economic growth at the national level। तो ये नई कंसेप्ट है आपकी, that is your basically sustained growth in the world। The commonality lay in their ability to explain why humans have managed to achieve sustained economic growth over the past 2 centuries। 200 सालों से हमारी ग्रोथ कैसे कंसिस्टेंट रह पाई है when for most of human history economic stagnation was the norm। जबकि ज्यादातर हमारी हिस्ट्री में हमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी नजर दिखे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हुआ। अब इसमें क्या काम है उनका, Mokyr's contribution। Now these days there is hardly a debate that does not reference a country's economic growth। Now countries such as China, India have grown at more than 7% of decade now, pulling millions out of abject poverty। However, fast economic growth of this kind has not only been absent for most of human history, in fact it has been unheard of। जैसे कि ये चार्ट के अंदर भी हमें शो कर रहे हैं, as the norms have been that economic stagnation despite technological advancement, so what changed over past 200 years such that sustained economic growth became the new norm। तो ये 1200 से जो है वो अराउंड शुरू कर रहे हैं और इसको दिखाते हुए ये बात कर रहे हैं आपकी, और इसमें आपकी डायनेमिक्स भी दिखा रहे हैं और ये हमारे पास अब हाफ में भी इस टाइम पे चार्ट अवेलेबल है। सो 1200, 400, 1400, 1600, 1800 एक लाइन में ही चल रहा है आपका ग्राफ, लेकिन ये 1800 ये लास्ट आपके 200 सालों में हमें ग्रोथ जो है वो इंक्रीज मिली है। तो ये बेसिकली स्टडी कर रहे हैं और इसका कारण ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा 200 सालों के अंदर कैसे हुआ। Now through his historical research, Mokyr showed that prior to the Industrial Revolution, technological innovation was primarily based on perspective knowledge। That is, people often knew how things worked, but they did not have the answer to why things worked। तो ये पहले हमारी जो कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशंस थी, रेवोल्यूशंस आए उसमें और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में यही फर्क है कि हम वाई तक जानने लग गए हैं। And but this changed over 16, 17 centuries as the world witnessed the scientific revolution as part of enlightenment। According to Mokyr, scientists began to insist upon precise measurement method। अब हमारे पास क्या आ गया है, precise measurement है and controlled experiments हैं and reproducible results हैं, and this has led to अब ये how से why में हम जो है पहुंच पाए हैं and these queries getting answered to produce useful knowledge। So for instance, the steam engine was improved thanks to contemporary insights into atmospheric pressure and vacuum, and advances in steel production were made due to the advancing of how oxygen reduces your carbon content of the molten pig iron। Now that is now this confluence of how अब and why के साथ क्या हुआ, why was not enough to propel world on the path of sustained economic growth। So the last piece of puzzle according to Mokyr was society's openness to change। तो हाउ तो हुआ लेकिन वाई नहीं हुआ, बिकॉज समाज पूरा का पूरा उसको यूज नहीं कर पाया, उसमें ओपन नहीं था चेंज के लिए, और ये बता रहे हैं दैट इज Mokyr was the society's openness to change another key attribution of your enlightenment।
Now, growth from technological changes produces both winners and losers. Unless a society is willing to accept this process of creative destruction, a term first used by economist Joseph Schumpeter in 1942, change will not happen. अब ये नई कंसेप्ट क्या है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की। ये पुरानी कंसेप्ट है लेकिन आपको अभी इसका रेफरेंस पता लग रहा है। 1942 की कंसेप्ट है जिसमें स्कूमटर बोलते हैं, एंड ये जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते बदलाव को, तब तक जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको समाज के अंदर। सो दिस चेंज विल नॉट हैपन। मॉकर फाउंड दैट दिस एक्सेप्टेंस वाज अ क्रिटिकल डिफरेंस। तो ये भी एक डिफरेंस का कारण था, बिकॉज तब जो है उतना ज्यादा लोग चीजों को एक्सेप्ट ओपनली नहीं करते थे। Now, Agian and Hobbit का जो मॉडल है वो क्या बताता है? They have tackled the same question, how technological advancement leads to sustained growth, but their approach was very different. Instead of looking back, they studied the modern economy and found that under the calm waters of stable economic growth at national level lay a lot of upheaval at the firm level. In fact, ये कह रहे हैं कि firm level पे बहुत ज्यादा upheaval दिखती है, चाहे ऊपर से हमें वो पता ना चले। इसमें जैसे कि ये दूसरे चार्ट के अंदर हमें दिखा रहे हैं, ये अपहीवल ही बेसिकली आपके एवरेज एंट्री ही है, जॉब क्रिएशन है, एक्सॉल्ट रेस है, जॉब डिस्ट्रक्शन रेट है। जॉब डिस्ट्रक्शन रेट भी हमें दिखा रहे हैं कि ये भी साथ साथ में ही आपकी चलती है। तो Now this chart ये यूएस में दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% जो है वो आपका all the companies go of your out of business every year, and just as many has started among the remaining business, a large number of jobs are created. उसके साथ ही disappear भी होती हैं ये, and even now your these numbers may vary. Now, through a mathematical model, they presented the shape in the paper in 1992. Agian and Hobbit showed how this kind of creative destruction, while looking massively upsetting at the level of individual company, could lay a foundation for stable macroeconomic growth. तो कंपनी लेवल पे तो आपको ये conflicting लगेगा, दिक्कत लगेगी, लेकिन मैक्रो लेवल पे ये अच्छा रहता है, बिकॉज अगर कहीं पे आपकी जॉब डिस्ट्रक्शन हो रही है तो जॉब क्रिएशन भी उसके साथ में हो रही होती है। Now here is a brief. Now imagine an economy where the rules are such that companies with best technology can take out patents on their product. The protection from patent can create a monopoly that creates profit and pays for the production cost. लेकिन however, a patent offer protection from competition but not from another company making a new patent. अब सारे ही काम पे हैं तो दूसरी और कंपनी नया पेटेंट लेके आ सकती है, और इससे दिस क्रिएट्स एन इंसेंटिव फॉर अदर्स टू compete and out innovate in a bid to create monopolies and profit. तो इस तरह से क्रिएटिव एटमॉस्फेयर जो है वो बनता है। Now, however, money for investment in research and development of companies originate in household saving, right? And how much household save in turn depends on the interest rate. पूरी इकोनॉमी आपस में इंटरलिंक्ड है, तो कितनी सेविंग इन्वेस्ट हो पाती है, that in turn is affected by growth rate of the economy. So production, research and development, financial market, household saving, सब कुछ आपस में linked है। Agian and Hobbit model was the first macroeconomic model for creative destruction to have general equilibrium. That is when all these different markets are in balance. तो ये सारी की सारी terms को लेके आपका क्वेश्चन बन सकता है बेटा। Now, policy implication. The work of newly minted Nobel laureate lies at the heart of many of the burning debates at present. Should government subsidies research and development in companies? क्या government भी subsidies देती है? Would that help society? कैसे फायदा होगा? Another, if not, an alternate question is whether government should subsidize social welfare schemes and all. तो ये क्वेश्चन भी अभी साथ में जो है उसके आंसर भी हमें ढूंढने हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हुआ है, इसको आप अच्छे से फोकस करो। नेक्स्ट बेटा एक प्लेस है न्यूज के अंदर, दैट इज शर्म एल शेख, अ रिजॉर्ट टाउन होस्ट टू मेनी इंटरनेशनल मीट्स। तो देखते हैं किस किस का जिक्र आता है। वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड एट शर्म एल शेख, कहाँ पे है? इजिप्ट में, मंडे, और यहाँ पे जो है आपकी गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर डिस्कशंस हुई थी। नाउ स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, इट लाइज ऑन अ प्रमोंटरी ओवरलुकिंग द स्ट्रेट ऑफ तिरान। तो स्ट्रेट ऑफ तिरान को ध्यान में रखो, और उसके साथ ही गल्फ ऑफ अक्वाबा, वंस अ स्लीपी फिशिंग विलेज, लेकिन टुडे इट्स अ बसलिंग रिजॉर्ट टाउन। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ज्योग्राफिकली देखना, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ तिरान कहाँ पे है, ये आप मैप स्टडी में डालोगे। Now, strategically located Israel's only direct access to Red Sea है ये, lies through Strait of Tiran, इसलिए important है। And Sharm el Sheikh emerged as a major naval base for Egypt by 20th century. It was conquered by Israel during Suez Crisis in 1956.
then overseen by UN peacekeeping forces from 56 to 57 to 67, फिर से इजराइल के पास आए 67 में, and held by Israelis until 1982. तो ये पूरी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. And when being handed back to Egyptians, again फिर इजिप्ट के पास गया 82 में. Countries and President Hosni Mubarak designate Sharm el-Sheikh at City of Peace, and by 2000 it had emerged a major host, basically hospitality hub for around 100 resorts. नाउ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इस पे टाइम टू टाइम होती रही हैं. अभी इजराइल पैलेस्टीन टॉक 1999 में हुई. इजराइल प्राइम मिनिस्टर जो है उस टाइम पे एहूद बाराक, पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी आपकी चेयरमैन यासिर अराफात, उन्होंने अपना बहुत ही फेमस शर्म एल शेख मेमोरेंडम साइन किया था. देन इमरजेंसी समिट हुआ 2000 में, वहां पे दे होस्टेड मीटिंग विच अराफात एंड बाराक, यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, मुबारक, किंग अब्दुल्ला, ये सब लोग जो है वो तब प्रेजेंट थे. देन शर्म एल शेख समिट 2005 में हुआ. ऑन February 8 a high profile diplomatic summit hosted by Mubarak and attended by King Abdullah. इजरायली पीएम एरियल शरन थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको पार्टिसिपेट किया. देन WEF on MENA 2006, 8 and 14 ये सारा हुआ. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का MENA मतलब मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिकन मीटिंग्स हुई यहाँ पे. देन EU अरब लीग समिट 2019 का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. तो वहां पे लीडर्स आपके यूरोपियन यूनियन के और अरब लीग के यहाँ पे मिले. एंड देन COP27 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 27 कॉन्फ्रेंस हमारी COP27, ठीक है, UNFCCC का, वो भी यहाँ पे हुआ. तो ये प्लेस न्यूज में है, ज्योग्राफिकली आप इसको फोकस करोगे, इसका मैप जो है थोड़ा सा आप स्टडी करके जाने वाले हो. अभी इस न्यूज आर्टिकल में बेटा थोड़ा डिस्कस करते हैं जो गाजा इशू को लेके शर्म एल शेख के अंदर मीटिंग हुई. US President Donald Trump has declared the war in Gaza over as heads of Red Sea resort city Sharm el-Sheikh in Egypt for a peace summit that marks the release of Israeli hostages and Palestinian detainees. So all 20 living hostages held in Gaza and hundreds of Palestinian prisoners were being freed. Now इसमें जो है hurdles क्या हैं? Hostage exchange was point number 1, a Trump 20-point plan था. Heavy lifting comes now, including issues such as a disarming of Hamas कराना है, security guarantee to Gaza देना है, bigger task है आपकी rebuilding की. And then follows the painstaking जो है task of basically rehabilitating the displaced one. And even if all this is done, the bigger question is who will govern Gaza, if not the Hamas or Palestinian Authority, as has been suggested in the deal. There is one vague reference कि पैलेस्टीन की तरफ से अब कौन करेगा, क्या पैलेस्टीन को स्टेटहुड देना है या नहीं. The problem with spectacles like the unhold at Sharm el-Sheikh is that it will be just that, a spectacle, and none of the leaders assembling there have a shared vision. क्यों ऐसा लग ही रहा है कि किसी की कोई profound vision, shared vision अभी तक नहीं आई है. And the common Palestinian have had no voice. उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. If Hamas refuses to disarm, then relinquish control over Gaza today is little more than a temporary ceasefire. तो ऐसा भी लग रहा है कि एक temporary ceasefire रहेगा अगर Hamas जो है वो dismantle नहीं होता है. Also, there is a chance that after this bash at Egyptian resort is over, everybody goes home कि सब लोग वैसे ही वापस जाएंगे and could go back where it started according to same place. अब जहाँ से शुरू हुआ था, maybe ये कहानी वहीं पहुँच जाएगी, ऐसी कुछ अभी अंदेशा लग रहा है. The basic question at the heart of this enduring conflict had largely ignored in Trump's so-called peace plan, and that's the issue of the occupation of Palestinian territory by Israel. अब जहां तक इजराइल आके घुस गया है, उसका क्या करेंगे, इसका कोई भी आंसर इनके पास नहीं है. Is Hamas sincere about eventual handling over the function? अभी ये भी क्वेश्चन मार्क है. And international stabilization force in Trump's plan, which is supposed to consist Arab and Muslim states, is unlikely to, और अभी make a dent without Hamas agreeing to the disarmament. जब तक Hamas disarmament नहीं करता तब तक वैसे भी और आगे ये बात बढ़ ही नहीं सकती है. So Trump का जो है इसमें leverage और interest क्या है? The big positive in the large picture is Trump's extraordinary leverage over Israel Prime Minister Netanyahu, and repeatedly described Trump as the best friend Israel has ever had in the Oval Office. तो पता ही है कहीं ना कहीं इजराइल और यूएस की आपस में बहुत बनती है. So Netanyahu has previously scored political points by browbeating American democratic administrations and exploiting political division. और अमेरिका में अपने आप पे भी political division हमें दिखती है. So while former President Joe Biden in all fairness did kick off parts of this peace plan, including the process of hostage
release, he faced with a wrangling within his party, especially from some of the left-leaning members. With Netanyahu exploited to hit. इससे पहले यही प्लान इनफैक्ट जो है वो बाइडन भी ला चुके थे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिली यूएस में. With Trump, he can't do any of that, and the Trump knows that and has used that leverage when he need to, and whether in forcing Netanyahu to accept the deal early this year that brought 30 of the living hostages. लेकिन ट्रम्प की पॉलिटिकल सेटअप बेटर है, उसकी कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज है हैंडल करने की, लोगों को जो तरीका है वो ज्यादा अच्छा है. इसको यूज करते हुए ऑलरेडी पहले भी 30 होस्टेजेस को रिहा कराया, और अभी एक जो कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी देर के लिए हमारी एक पीस डील हुई है उसको वो कर पाए है. So this article is not that important for prelims point of view. थोड़ी डिस्कशन है, लेकिन यहाँ से क्लू लेके आपका मेंस में क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के यू मस्ट नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट की ये बेसिकली वहां पे तब हुआ क्या था. थोड़ा अपने आप को इसके साथ, इस इशू के साथ जो है वो आप रिलेट करके रखो. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बेटा. मैत्री 1, आई होप आपको पता हो मैत्री 1 क्या है. अब मैत्री 2 आ गया है. थोड़ा समझ आया? ओके, अगर नहीं भी आया तो अभी हो जाएगा डिस्कस. नाउ इंडियाज नेक्स्ट चैप्टर इन द वर्ल्ड साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका. वहां पे है हमारा परमानेंट स्टेशन. नाउ दैट इज स्टिल all set to unfold, and the finance ministry has granted approval to Maitri 2. Maitri 1 हमारा ऑलरेडी है वहां पे स्टेशन, अब Maitri 2 में हम जा रहे हैं. कंट्रीज न्यूएस्ट रिसर्च स्टेशन होने वाला है ये ईस्टर्न अंटार्कटिका के ऊपर. वंस बिल्ट एंड रेडीड, ये हमारा 2029 तक जो है वो तैयार हो जाएगा. Maitri 2 विल बिकम इंडियाज 4th रिसर्च सेंटर. टोटल जो है वो 4th होगा ये. गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशन. और हमारे मिशन अंटार्कटिका के साथ साथ आर्कटिक के ऊपर भी है, उसको भी यही डील करता है. एंड ये जो प्लान है, दिस प्लान फॉर Maitri 2 वाज फर्स्ट प्रपोज्ड 2023 के अंदर हुआ था. एंड NCPOR डायरेक्टर जो है थम्बन मिलॉत, उन्होंने ये बताया Maitri 2 विल बी बिल्ट इन ईस्टर्न अंटार्कटिका. फाइनेंशियल जो है इसके अंदर आउटले 2000 करोड़ का रहने वाला है. इंडिया का अभी हिस्ट्री आ गई यहाँ पे, ध्यान दो. इंडिया फर्स्ट जो है वो रिसर्च बेस क्या था? दक्षिण गंगोत्री. अपीयर्ड फॉर अ ईयर. करंटली Maitri ऑपरेशनल जो है वो हमारा सिंस 1989 से चल ही रहा है Maitri 1. एंड भारती इसके साथ ही है जो ऑपरेशनल 2012 से. एंड सपोर्ट इंडिया साइंटिफिक कम्युनिटी, इसी वजह से 4th जो है हमारा Maitri 2 अभी होने वाला है. एंड इसमें और थोड़ा सा आगे देखें. नाउ टेंटेटिवली द सी वॉयज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका लास्ट एनीवेयर between 1 to 3 weeks depending on the route. If weather permits, then Maitri जो है in a week वो जल्दी पहुंचेगा. To Bharati takes longer, and summer and winter expedition see participation by Indians meteorologists जो है वो वहां पे हमारे जाएंगे. And India has been conducting research, ये 1980 से हमारी चल रही है. और ये हमारा जो spread है that is across 14 million square kilometer. 98% of continent is covered by a thick ice sheet believed to have formed 25 million years ago. And the icy land mass holds 75% of the Earth's fresh water reserve अभी भी है वहां पे. And the world's 5th largest continent है हमारा अंटार्कटिका. Offers unique wildlife, extreme weather, cold, dry, windy, हर तरह का है वहां पे. Maitri is located along your Scremaster oasis. ध्यान दो इस पे, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन बन सकता है. 20 किलोमीटर लॉन्ग आइस फ्री लैंड मास है इन द ईस्ट अंटार्कटिका, सराउंडेड बाय आइस शीट एंड शेल्स. एंड एन इनलैंड स्टेशन जो है वहां पे लोकेटेड अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द शोर एंड एट एन एलिवेशन ऑफ अराउंड 50 मीटर अबव सी लेवल. एंड Maitri comprises the main building, a fuel farm है, fuel station है, lake water pump है, एंड समर कैंप है वहां पे. मेन बिल्डिंग ऑफर रेगुलेटेड पावर सप्लाई इन जो है इंसिनेशन टॉयलेट्स, कोल्ड स्टोरेज, एवरी सॉर्ट ऑफ योर फैसिलिटी इज देयर. एंड 25 से 40 साइंटिस्ट को अकोमोडेट कर सकता है. ओरिजिनली बिल्ट विद डिजाइन लाइफ ऑफ 10 ईयर. ऐसे ही ऑन द नीड फॉर Maitri 2 क्यों जरूरत पड़ रही है? Maitri has become an old facility. Now there are some flaws that emerged, इस वजह से हमें Maitri 2 के लिए अभी जाना पड़ रहा है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पंजाब पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है. कभी भी कोई बुक है उसके ऑथर आपको पता होना चाहिए. सोशियोलॉजिस्ट है संतोष के सिंह, तो विद योर लिट फेस्ट डायरेक्टर के साथ ही इनकी पिक है. राहुल सिंह इन कसौली,
और यहाँ पे ये बेसिकली डेरास के साथ रिलेटेड जो है इनका काम पब्लिश हुआ है। पंजाब 12,000 विलेजर्स आर होम टू नियरली 9,000 डेरास हैं अभी। इनफॉर्मल स्पिरिचुअल कंग्रेगेशंस है हमारी, और उसको लेके हमारे संतोष के सिंह सोशियोलॉजिस्ट है, मिरर द स्टेट्स डीप प्लूरलिज्म एंड असर्शन ऑफ इट्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। 9,000 डेरा इज अ बिग डील। नाउ एट द सेशन डेरा एंड द नेक्स्ट जनरेशन नेविगेटिंग पंजाब्स क्राइसिस, ये है काम। एट खुशवंत सिंह योर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे होता है? कसौली में। तो वहां पे इन्होंने डिस्कस किया अबाउट दिस रीसेंट बुक। एंड डेरास, इसका नाम क्या है बुक का? द डेरास। किसकी है? सोशियोलॉजिस्ट है संतोष के सेन। एंड वहां पे उन्होंने जो ये बताया that Punjab doesn't need to seek any new model for renewal as its living tradition already embodied resilience and dialogue. Punjab engages you with its complexities. Singh said, now recalling how his research began after he noticed women agricultural laborers in Patiala wearing identical lockets tied local डेरा। तो वहां से उन्होंने डेरा में इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने इसको लेके काम किया। अभी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक है और कौन से ऑथर है? मस्ट फॉर योर पंजाब पीसीएस पेपर दिस ईयर, खास करके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, दिस इज रिगार्डिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट? नाउ द चाइना यूएस ट्रेड वॉर हैज हैड एंड्यूरिंग sticking point, that is rare earth minerals, or China ramped up in clampdown your rare earth exports, prompting US President Trump to threaten economic retaliation by way of 100% tariff. But Trump also suggested that he could cancel a scheduled meetup with China. तो आपको पता है चाइना और यूएस में ट्रेड टसल चल रही है। अब वैल्यूएबल बट नॉट सो रेयर, अब रेयर अर्थ पावर है किसकी? चाइना की। तो अभी बात ये चल रही है कि अब रेयर अर्थ को बाकी कंट्रीज किस तरह से रीच कर सकते हैं। ना रेयर अर्थ्स आर सबसेट्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ग्रुपिंग, दे इंक्लूड 17 मेटालिक एलिमेंट्स लोअर डाउन इन द पीरियोडिक टेबल होते हैं, फ्रॉम लेंथिनम एटॉमिक नंबर 57 से ल्यूटिटियम 71 प्लस केंडियम एंड हीट्रियम। तो ये सारे हमारे जो है रेयर अर्थ हैं। And these elements are characterized by their high density होती है, high melting point, high conductivity, high thermal conductance. Very 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 important बेटा for your prelims. ये क्वेश्चन आपका बनता है रेयर अर्थ पे कि क्या क्या इनके फीचर्स हैं। And they are classified as heavy or light based upon their atomic weight. So because सभी heavy या light नहीं होते। Rare earth form crucial input although often in trace volume, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेपन्स, प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी में यूज होते हैं, फ्लैट टीवी स्क्रीन के अंदर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एमआरआई स्कैनर, बहुत जगह पे इसका यूजेज है। देयर मटेरियल प्रॉपर्टीज मेक अलॉयज स्ट्रॉन्गर बनते हैं, अलॉयज इनसे मोर हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंटली मैग्नेट मोर पावरफुल हो जाती हैं। मैग्नेट्स ऑल्दो ऑफन नॉट विजिबल आर फाउंड इन नियरली इवन मॉडर्न डिवाइसेस फ्रॉम कंज्यूमर गुड टू डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक मोटर, सब में इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एक एक वर्ड को इस सॉफ्ट कॉपी में से आप अच्छे से रट के जाओगे, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं लिख के देती हूँ, आपको आएगा। द टर्म रेयर अर्थ हाउएवर इज मिसनॉमर, लेकिन ये रेयर अर्थ वर्ड क्यों यूज हो रहा है? ये मिसनॉमर है विद द एक्सेप्शन ऑफ हाईली अनस्टेबल प्रोमिथेरियम, दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन अक्रॉस अर्थ्स क्रस्ट। तो रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं कि ये कम पाए जाते हैं, सिर्फ एक ही है जो बहुत कम है, दैट इज प्रोमथीनियम, और उसके अलावा बाकी काफी कम अमाउंट में मिलते हैं क्रस्ट पे। एंड दैट इज योर सीरियम इज इन फैक्ट 25th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, एंड मोर अबंडेंट देन गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि ये रेयर है क्या, इस वजह से रेयर अर्थ इनका नाम डाला गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हमारा मिसनॉमर है। And there are two main reasons why they are said to be called as rare. First is one, although moderately abundant, ना तो बहुत ज्यादा abundant है ना ही rare है, actually ये moderately abundant की कैटेगरी में आते हैं। Then gold, silver, tungsten, many other elements which do not enjoy the rare tag. There are two main reasons. क्या? One, although moderately abundant, these elements are not found in large concentration. ये नहीं कि बहुत ज्यादा एक ही जगह पे आपको मिलेंगे, लार्ज कंसंट्रेशन नहीं है। दिस मेक्स देम डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट, इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं मिलते हैं ये, एंड ये चैलेंजिंग है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मोर देन 60% ऑफ माइंड रेयर अर्थ प्रोडक्शन करंटली कम्स फ्रॉम ओनली वन कंट्री। अब क्योंकि इसमें जो मेन महारत जो हासिल कर पाया है वो हमारा बेसिकली चाइना है, इस वजह से इसको रेयर अर्थ कहा गया है। तो बीजिंग से ही 90% आपकी ग्लोबल आउटपुट जो है वो पूरी होती है, राइट?
बीजिंग ट्रेड वेपन, बीजिंग इसको ट्रेड वेपन की तरह यूज कर रहा है सिंस 1987। डेन जियोपिंग जो है कंसीडर्ड टू बी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना, इनको हम बोलते हैं। उन्होंने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। चाइना's rare earth reserve and inner Mongolia to West Asian oil reserve. Beijing has built up near total control on minerals. ये सब पे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करा। China's repeated curbs of rare earth mineral, especially the heavy one like your terbium, then dysprosium, which are more scarce than the lighter counterparts, are part of its stated policy to weaponize trade. इसके ऊपर खास ध्यान रखा। 17 के 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लिस्ट को आप एक बार जरूर फोकस करके जाना, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। Now it is thought that rare earth cannot be found outside China. Brazil में भी इसके large reserve है, so does even Australia and even India also. But the problem is that most of these countries are not doing all that is needed. ये सब लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं, उतना पैसा इस पे नहीं लगा रहे हैं। This has meant that most of the mining of rare earth happens in China only. तो China's fresh curve आपकी चल रही है। China has added 5 rare earth element, holmium, erbium, then thulium, europium and yttrium, as well as related magnets and materials to its existing control list. ये कौन सी control list के अंदर एलिमेंट है, इनको पक्का रख लो आप। And requiring export licenses, इसमें export license लेना पड़ता है, strictness है। That takes a total amount of restricted rare elements to 12. 7 इसके अलावा samarium, that is your gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, yttrium तो already restricted हैं ही। ये सारे जरूर याद करके जाना। Beijing has also added dozens of pieces of refining technology to its control list while announcing rules that will require compliance. तो ये चाइना ने अभी इस तरह से इसको ट्रेड वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया को भी इसमें दिक्कत फील हो रही है। रेयर अर्थ को लेके इंडिया इंपोर्टेड 2270 टन्स ऑफ रेयर अर्थ, और 23-24 में 23% ये बढ़ा, इससे पहले 19-20 से। और चाइना जो है इसमें अकाउंटेड फॉर 65% ऑफ दिस अमाउंट, 10% केम फ्रॉम हांगकांग इटसेल्फ। द टू सेक्टर्स हैव बीन बैडली अफेक्टेड, तो इस वजह से हमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, खास करके हमारी ऑटो इंडस्ट्री, ईवी मेकर्स को। एंड डोमेस्टिक माइनिंग, रिफाइनिंग मिनरल वाइल रिमेनिंग मॉडेस्ट है, लेड बाय स्टेट ओन्ड हमारे जो है यहाँ पे IREL लिमिटेड, विच ऑपरेट्स द प्रोसेसिंग यूनिट विद कैपेसिटी ऑफ over 10,000 tons. Now India is however hoping to ramp up its exposure to rare earth, कि हम खुद ही ज्यादा rare earth जो ढूंढ पाए। Last November, country launched an auction for 7 seabed blocks in Andaman Sea for exploration and eventual mining. तो ये हमारा इसका जवाब है कि कैसे हम इसकी पूर्ति करेंगे। The Department of Atomic Energy is learned to have accorded in principle approval for futuristic proposal of your IREL towards setting up a rare earth theme park, जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें परमानेंट मैग्नेट पार्क आपका विजिट के अंदर, रेयर अर्थ टाइटेनियम थीम पार्क है भोपाल के अंदर, दीज आर कमिंग अप। ये भी आपको याद करना है बेटा, क्योंकि करंट है आपका, ठीक है। सो ये न्यूज आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से वर्कआउट करके जाओ। नेक्स्ट बेटा, ये चार्ट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ बाय प्रिंसिपल कंट्रीज ऑफ टन्स, इसमें आपको एग्जैक्टली सीरी दी है, इसको बहुत अच्छे से रट्टा मार लो बेटा, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड में रिजर्व देखें, सबसे ऊपर चाइना, वियतनाम, ब्राजील, रशिया, फिर आपका इंडिया आता है 1 2 3 4 5th नंबर पे इंडिया है, देन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस है। और वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ, अगर हम ऑक्साइड्स के अंदर बात करें, ये रिजर्व्स है, ये प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन के अंदर जो है अगेन चाइना, लेकिन चाइना के बाद फिर म्यांमार, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये डाटा आपके लिए बहुत यूजफुल है। उसके ऊपर आपको एक चार्ट भी मिल रहा है, राइट। उसके अंदर आपके कार्बोनेटेड एसोसिएटेड एल्किलाइन जो है, आयरन फ्री अलग अलग फॉर्म में जो आपके डिपॉजिट्स हैं रेयर अर्थ के, उसको भी इन्होंने मार्किंग के साथ हमें दिखाया है। तो इस चार्ट को भी मैं आपको ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेके इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। नेक्स्ट हमारा बेटा इंडिया मंगोलिया का पैक्ट है, थोड़ा सा इसके ऊपर देख लो, आपको कभी क्वेश्चन बनता हो तो पहचान कर पाओ। India on Tuesday decided to fund an oil refinery project, give training to Mongolian armed forces, give free visas to Mongolian citizens, have cultural ties between Ladakh and provinces of East Asian nation, और ये चीजें हैं, खास करके ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी हमने साइन किया। After bilateral meeting, Hyderabad House, PM Modi said two countries had elevated their ties to strategic partnership of about 10 years. They signed 10 pacts जो है वो साइन हुए हैं, और इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड, जियोलॉजिकल मिनरल जो है वो आपके रिसोर्सेज, योगा एंड रेनोवेशन जो है आपकी ऑफ भोगद खान पैलेस। ये भोगद खान पैलेस, इसको समझ लो आप अलग से,
राइट। तो ये बेसिक है। ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है इंडिया का 1.7 बिलियन का, इसमें हम क्रेडिट दे रहे हैं और इससे स्ट्रेंथन होगा मंगोलिया की एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया जो है लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ग्लोबली विद ओवर 2500 इंडियन प्रोफेशनल्स जो है वो वहां पे काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं फॉर पीसीएस प्रीलिम्स दिस ईयर। नेक्स्ट न्यूज एनवायरमेंट को लेके है बेटा। एलिफेंट्स का काउंट कम हो रहा है। इंडियाज एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 22,446 जो है लोअर बाय 17.81% फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेशन डन 8 years ago का है आपका। ये ध्यान रखो आप, एलिफेंट पॉपुलेशन कम हो रही है। साइज सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन है आपका 21-25 की रिपोर्ट है। कंपेयर टू द लास्ट ये रिपोर्ट आपकी 2017 की, वहां पे 27,312 थी। पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है अराउंड 4,000। However, the latest population report added a caveat that the two figures are not directly comparable due to change in the methodology. बाकी खुद बोल रहे कि मेथोडोलॉजी में चेंज हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें स्टेटमेंट आएगी तो हमने उसको यस बोलना है या नहीं। यस बोलेंगे अगर वो लोअर डाउन बता रहा है तो। According to latest data, elephant number remain highest western घाट में सबसे ज्यादा है, then north eastern hills, then ब्रह्मपुत्र flood plain, शिवालिक hills, Gangetic plain and eastern घाट। स्टेट्स में देखें तो कर्नाटका कंटिन्यूज टू हार्बर लार्जेस्ट आपकी पॉपुलेशन कर्नाटका में है, उसके बाद असम, फिर तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड एंड देन ओडिशा। ये स्टेट्स आपने याद करने हैं, राइट। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट, ये आप थोड़ा सा डाटा लर्न करके जाना। नेक्स्ट न्यूज बेटा स्पोर्ट्स से है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक छोटा सा कंट्री क्वालिफाई कर पाया है वर्ल्ड कप को, दैट इज केप वर्डे विल प्ले वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बीटिंग इस्वातिनी 3-0 टू विन इट्स ग्रुप इन अफ्रीकन क्वालिफाइंग फॉर 2026 वर्ल्ड कप। तो आपने केप वर्डे, इस्वातिनी, इन सबको मैप में स्टडी करके जाना है। The archipelago of volcanic island off the western coast of Africa secured one of the 9 automatic spots on the continent and it will be the second smallest country by population to feature in the tournament. उससे पहले आइसलैंड एक ऐसा छोटा कंट्री था जो 2018 में जो है इसमें आया था। एंड इसके अंदर जो है प्लेयर्स बेसिकली थोड़ा बहुत देख सकते हैं प्लेयर्स को लेके, दैट इज डालियन लिवरबेंतो 48 मिनट्स में जो है इन्होंने स्कोर किया और 54th जो है स्ट्रोपिया इन स्टॉपेज टाइम था इनका। तो ये कुछ प्लेयर्स के साथ एसोसिएट कर लो, बाकी हमें आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स के नाम से न्यूज आने वाली है, लेकिन या तो फुटबॉल को लेके इस तरह से फीफा को लेके न्यूज आएगी और या फिर ज्योग्राफिकली आपको ये कौन कौन सी प्लेसेस है उसके ऊपर न्यूज आ सकती है। तो ये आप वर्कआउट करके जाओ। और इससे पहले आइसलैंड ने जो ऐसा किया, केप वर्डे, पैराग्वे, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये एट डिफरेंट टाइम्स जो है इन्होंने क्वालिफाई किया था। ये ईयर्स याद कर लो और इनको ज्योग्राफिकली स्टडी करके जाओ और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छे से कर पा रहे हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम अप्रोच कर रहा है, टेंशन की बजाय पढ़ाई करो। और वीडियोस में मैं आपको करंट अफेयर को सिंप्लीफाई करके न्यूज़पेपर्स को बता रही हूँ, तो मेरे साथ साथ काम करते जाओ, सॉफ्ट कॉपी लेके उसको भी तैयार करते रहो और अपनी फीडबैक प्रोवाइड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।